Hello students, this is Afrin Miss, English teacher. So, today we are going to learn a very interesting story about Grandfather's House by Johanna Spyri. Johanna Spyri was born in Switzerland on 12th June 1827 and spent many summers in the mountains. She used these experiences in most of her stories and novels, eventually writing more than 50 such stories sets in the Alps. Students, you know what is Alps? Alps, a high mountain, especially a snow-capped one, जो बर्फ से पूरा ढका हुआ है. उस पर जोहन्ना स्पायरी जा जाकर वहाँ पर मोर देन 50 से भी ज़्यादा स्टोरी वो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करके वो स्टोरीज नॉवेल्स लिखी है. हर पोर्ट्रेट वॉज प्लेस्ड ऑन ए पोस्टेज स्टैम्प इन स्विट्जरलैंड इन 1951. पोर्ट्रेट मीन्स यू नो पेंटिंग और पिक्चर यू कैन से, एंड पोस्टेज विच वी आर यूजिंग इन पोस्ट ऑफिस स्टैम्प टू send a letter or parcel. We indicate that postage that it is paid. Okay. It was in 1880 that Spyri received much acclaim from Heidi. Heidi, this grandfather's stories, this one, she received much acclaim, means praised publicly. सब पब्लिक ने इस स्टोरी को बहुत पसंद किया. The novel was translated from German into 50 languages. फिर जर्मन से ये 50 लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेटेड किया गया. So now we are going to start the chapter. Okay. Heidi is an orphaned little girl. Orphaned means you know अनाथ. Okay. With her aunt dead, Heidi is an orphaned little girl who lives with her aunt dead. To whom we are saying aunt? You know, aunt is your father's sister or your mother's sister, or you can call to your uncle's wife, we are calling aunt. Okay. Dad takes Heidi to live with her grandfather, whom Heidi has never met before. He lives in a little wooden house high up on the mountains called Alps. Now only I said Alps meaning is a high mountain, especially a snow cap, जो बर्फ से पूरा ढका हुआ है. वहाँ पर वो एक लिटिल वुडन छोटा सा लकड़ी के घर में वहाँ पर रहते थे. हाई अप ऑन द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर. ओके. विथ हिज 2 gods. द एक्सट्रैक्ट यू आर अबाउट टू रीड डिस्क्राइब्स हेडीज फर्स्ट डे इन हर न्यू होम. तो हेडी का पहला डे उसके नए घर में कैसे बीतता है, हम वो सब आज पढ़ेंगे. नाउ Heidi was alone with grandfather. वो grandfather के साथ घर में अकेले थी. He sat on a wooden seat looking at the ground. वो wooden seat में बैठे थे और ground में देख रहे थे. He did not say a word. Heidi walked round the house of the house. Heidi walked round the outside of the house. वो घर के चारों तरफ घूमने जा रही थी. At one side there was a room for the gods. एक तरफ वहाँ पर gods के लिए एक रूम बना हुआ था. Which was empty, जो कि पूरा खाली था. वहाँ पर gods नहीं थे. At the back were 3 big old fire trees. Fire trees is an evergreen forest tree with leaves like needles. Okay. She could hear the wind going through them. और वहाँ से wind पास कर रहा था उस ट्री से. The sound was like singing and she stopped to listen before going on round the house.
तो वो साउंड सिंगिंग साउंड जैसा आ रहा था और वहाँ पर हेडी जाकर रुक जाती है। ग्रैंडफादर वॉज स्टिल इन द सेम प्लेस। ग्रैंडफादर अभी भी वहीं बैठे हुए थे। हेडी वेंट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। हेडी जाकर उनके पास खड़ी हो गई। व्हाट डू यू वांट टू डू, ही सेड एट लास्ट। फिर ग्रैंडफादर ने उसको पूछा, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहती हो? आई वांट टू सी व्हाट यू हैव इनसाइड द हाउस। मैं देखना चाहती हूँ आपके घर में क्या है। कम देन, ही ओपन द डोर। देयर वॉज ओनली वन रूम इन द हाउस। घर में एक ही रूम था, बट इट वॉज लार्ज, जो कि बहुत बड़ा था। इन वन कॉर्नर देयर वॉज ए बिग फायर प्लेस। फायर प्लेस मीन्स यू नो ए प्लेस फॉर डोमेस्टिक फायर. You can call it chimney, okay? With a table and a wooden chair near it, and in the other was grandfather's bed. वहाँ पर क्या था? रूम, उस घर में एक ही रूम था जो कि बहुत बड़ा था, और एक कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स कोना, एक कोना में क्या था? देयर वाज ए फायर प्लेस मीन्स चिमनी, जिससे घर में जो हम आग जलाते हैं वो धुआं उस चिमनी के जरिए वो ऊपर जाता है, घर के बाहर जाता है। विथ ए टेबल एंड ए वुडन चेयर, एक टेबल था और लकड़ी का एक चेयर था। नियर इट एंड इन द अदर, दूसरे साइड में ग्रैंडफादर का एक बेड था। देयर वॉज ऑल्सो ए बिग कबोर्ड, वहाँ पर एक बड़ा सा कबोर्ड था। इट हैड एवरीथिंग इन इट दैट ही नीडेड, और उसमें जो उसको चाहिए था वो सारी चीज़ें थी। ए फ्यू क्लॉथेस, बाउल्स एंड प्लेट्स, एक ये कुछ कपड़े थे, बाउल्स थे और प्लेट्स भी थे। ब्रेड एंड चीज़, ही केयरफुली पुट इन हेडीज थिंग्स, उसमें हेडी का सामान भी ग्रैंडफादर ने रख दिया। विच डेट हैड बोट, जो आंट डेट उसके साथ लेकर आई थी हेडी का सामान। हेडी लुक्ड राउंड द रूम। वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर, वेयर एम आई गोइंग टू स्लीप ग्रैंडफादर। Wherever you want, he said, जहाँ तुम चाहो वहाँ सो सकती। Heidi noticed some steps in the corner. Heidi noticed some steps. Step means you know ladder, सीढ़ी। कोना में वो एक सीढ़ी देखी। She climbed them and found herself in a room under the roof. There was hay all over the floor and it smelled good. Heidi noticed some steps in the corner. मतलब वो कोना में एक सीढ़ी देखी। She climbed them, उसमें जाकर वो चढ़ गई। And found herself in a room, एक रूम में, रूफ के अंदर, एक छत के ऊपर, रूफ के नीचे मतलब छत के ऊपर ही वहाँ पर एक रूम मिला उसमें। There was hay all over the floor. hay मतलब the grass that has been cut and dried, जो ग्रास काट कर सुखा के रखा हुआ था वहाँ पर। एंड इट स्मेल्ड गुड, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। फ्रॉम ए विंडो इन द रूफ सी कुड सी द माउंटेन्स, और उस विंडो के रूप से, उस रूफ के विंडो से वो माउंटेन देख पा रही थी बहुत क्लियरली। आई एम गोइंग टू स्लीप हियर, सी कॉल्ड। इट्स नाइस हियर, उसने कहा मैं यहाँ पर सोने वाली हूँ, यहाँ बहुत ही अच्छा है। कम एंड सी हाउ नाइस इट इज़, चलो देखते हैं बहुत ही कितना अच्छा है, आप आके देखो यहाँ पर। आई नो आई हैव सीन इट बिफोर, ही आंसर्ड। हेडी मेड ए लिटिल बेड फॉर हरसेल्फ आउट ऑफ द hay. हेडी वहाँ पर अपना बेड बनाती है। Then she called to grandfather to bring her some seats. उसने ग्रैंडफादर को कहा कुछ बेडशीट्स लाके दे वहाँ पर उसे देने। He had no seats but he found some pieces of hard brown cloth.
उसके पास कोई बेडशीट नहीं थी, तो उसके पास कुछ कपड़े थे, सम पीसेस ऑफ हार्ड ब्राउन क्लॉथ, कुछ मोटे कपड़े थे ब्राउन कलर के। ही बॉट दैम अप एंड लेड दैम ओवर द हे, उसने उसे लेकर आया और हे के ऊपर बिछा दिया। इट्स ए लवली बेड, हेडी क्राइड, I want to go to bed in it, but it's not night time now. उसने कहा ये बहुत ही अच्छा बेड है और वो रोने लगी। मुझे अभी बेड पे सोने जाना है, बट अभी नाइट का टाइम नहीं है। I think we should eat first. हमें पहले खा लेना चाहिए। Grandfather said and they went down the steps. ग्रैंडफादर मेड द फायर बर्न वेल, फिर ग्रैंडफादर ने फायर को अच्छे से बर्न किया। देन ही कट ए बिग पीस ऑफ चीज, फिर उसने बड़ा पीस चीज का काटा। ही पुट इट नियर द फायर अंटिल इट वॉज गोल्डन ब्राउन ऑन ऑल साइड, फिर फायर के पास उसने रखा जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो गया। हेडी ran to the cupboard. She took out the bread and 2 plates and bowls and put them on the table. So you can think for yourself, said grandfather. That's good. Now where are you going to sit? अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने कपबोर्ड के पास हेडी गई, वहाँ पर से कुछ ब्रेड, 2 प्लेट्स एंड बाउल्स लाकर टेबल पे रखी। सो यू कैन थिंक फॉर योरसेल्फ, सेड ग्रैंडफादर। दैट्स गुड। नाउ वेयर आर यू गोइंग टू सिट? अब तुम सोचो तुम कहाँ बैठने वाली हो। ही पुट हर ऑन टू हिज ओन चेयर, फिर उसे उसके चेयर में बैठा दिए। The table was too high for her, but the hot cheese and bread was very good. टेबल उसके लिए बहुत ही बड़ा था और हॉट चीज और ब्रेड वेरी टेस्टी था। Then grandfather filled her bowl with goat's milk. She drank without stopping until the bowl was empty. फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसे बाउल में गॉट का मिल्क पीने के लिए दिया और वो पीती गई जब तक दूध खाली नहीं हो गया हो। I have never had such good milk. I have never had such good milk, she said. उसने कहा ऐसा मिल्क मैंने पहले कभी नहीं पिया था, बहुत ही टेस्टी है।